Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 8, boost converter. A boost converter is a DC-DC converter that are used to step up the input DC voltage. Or in other words, they are used to increase the input DC voltage. You people know step-up transformer. Step-up transformer are used to increase the input AC voltage. And today we will study how to design and implement boost converter. The circuit you can see the circuit diagram of boost converter. It consists of an inductor, switch which may be BJT or MOSFET or IGBT, diode, capacitor and resistor. The circuit works on the ability of inductor and capacitor to store charge. And today we will study the behavior of boost converter. How it works. If considered that switch is permanently open, what will happen? If we apply a constant DC voltage to the circuit and switch is permanently open, what will be the output voltage? So you people know that inductor act as a short for DC. So if switch is open, diode will be forward bias, inductor will act as a short, capacitor will charge to a value equal to the input voltage. Means if the input voltage is 5 volt and switch is permanently open, 5 volt, approximately 5 volt will appear across the resistor R. If diode is ideal, means if we consider that all the components are ideal and the switch is permanently open, input voltage will appear across the load. R1 here represent the load resistor. So this is when switch is permanently open. Now let's consider that we turn on the switch. So if we turn on the switch, what will happen? Current will flow through the inductor. Diode will be reverse biased because switch will be closed, and if switch is closed, anode terminal of the diode will be at ground. So D1 will not conduct. D1 will be reverse biased if Q1 is closed. Source current will flow through the inductor, and inductor will store energy. So this is when switch will be closed. Means if Q1 is in on state, what will happen? D1 will be reverse bias, source current will flow through the inductor, and inductor will store energy. Means inductor will act as a load and it will store energy when Q1 will be in on state. When Q1 is in off state, means if we turn off the switch, what will happen? The inductor will try to release its energy, so it will change its polarity. The polarity across the inductor when Q1 will be on will be positive negative, and when Q1 will be off, inductor will change its polarity, means its polarity will be negative positive, and it will try to release its energy. In other words, it will act as a source. So if Q1 is in off state, D1 will be forward bias, and current will flow through the source voltage and also through the inductor, because inductor will also act as a source. So the total input voltage will be equal to the source voltage plus voltage across the inductor. So current will flow through the input voltage. D1 will be forward bias. Capacitor will store charge, and also voltage will appear across the R1. And at steady state, if duty cycle is constant and input voltage is also constant, a constant voltage will appear across the load. ठीक है, यानी काम कैसे करता है कि जब अगर Q1 क्या होगा, परमानेंटली ओपन होगा, फिर तो इंडक्टर ओपन की शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा और हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगी लोड के अक्रॉस. ठीक है, एंड इट विल नॉट चेंज. अगर हम लोड को चेंज नहीं करेंगे, इनपुट वोल्टेज को चेंज नहीं करेंगे, या स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तो हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलती रहेगी.
और अगर हम आइडल डायोड कंसिडर करें और कंपोनेंट्स को आइडल कंसिडर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, जो वोल्टेज में अप्लाई करेंगे, ठीक है, और स्विच अगर और हमको उसको हम परमानेंटली ओपन कर दें तो हमें वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे मिल जाएगी। यानी अगर हम 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमें 5 वोल्टेज जो है वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। अगर स्विच क्या होगा, वो परमानेंटली ओपन होगा। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे फिर क्या होगा, ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा सर्किट। स्विच अगर ऑन होगा तो फिर इंडक्टर क्या करेगा, लोड की तरह एक्ट करेगा और ये एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी और इसके क्रॉस जो पोलैरिटी होगी जब स्विच ऑन होगा, इट विल अपोजिट टू द सोर्स। तो अगर सोर्स पॉजिटिव है यानी तो फिर सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। स्विच क्या होगा, अगर क्लोज्ड होगा तो फिर इंडक्टर के क्रॉस पोलैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अपोजिट टू द सोर्स, और इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करेगा। और उस वक्त अगर कैपेसिटर के पास चार्ज है, ठीक है, यानी कैपेसिटर के क्रॉस अगर एनर्जी है तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड इट टू द लोड। तो लोड के क्रॉस जो करंट है उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, बिकॉज कैपेसिटर जो है वो करंट प्रोवाइड करेगा लोड को जब स्विच क्या होगा वो क्लोज होगा। और सोर्स करंट जो है वो सिर्फ इंडक्टर में फ्लो करेगा और इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करेगा। जब स्विच को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, फिर क्या होगा, इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए ये अपनी पोलैरिटी को इन्वर्ट कर देगा, यानी अगर इसके क्रॉस पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, अगर है जब स्विच ओपन क्लोज होगा तो ये इसकी क्रॉस पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जब स्विच क्या होगा ऑन होगा नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी जब स्विच क्या होगा ओपन होगा तो फिर इसके क्रॉस पोलैरिटी आ जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये अपनी क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को इन्वर्ट कर देगा एंड नाउ इट विल एक्ट एज अ सोर्स, ठीक है। तो अब नाउ द इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर भी सोर्स की तरह एक्ट करेगा, यानी कांस्ट ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और इस इनपुट वोल्टेज की वजह से अब क्या होगा, जब स्विच क्या होगा ओपन होगा तो डायोड क्या होगा फॉरवर्ड होगा और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। एंड लोड में भी करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से हमें लोड के क्रॉस स्टडी स्टेट में हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी लोड के क्रॉस। डिज़ाइन कैसे करेंगे, डिज़ाइन के लिए दीज आर द फार्मूलाज, ठीक है, कि क्रिटिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला है, ठीक है, एंड आल्सो क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो अगर आप सर्किट को देखें तो देयर आर टू अननोन, C1 एंड LN1, दीज आर द टू अननोन्स, ठीक है। एक हमने जो भी हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी साइकिल के किस रेट से हमने स्विच को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। वी नीड द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी साइकिल एंड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, और आल्सो वी नीड द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अगर हमें वी नॉट और वी एस पता है, यानी अगर हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज पता है तो हम ड्यूटी साइकिल की वैल्यू निकाल लेंगे इस रिलेशन से। वी नॉट इज इक्वल टू वी एस वन माइनस डी, वेयर डी इज द ड्यूटी साइकिल, वी एस इज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट डीसी वोल्टेज, एंड वी नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज दैट विल अपीयर अक्रॉस द लोड। और यहाँ से हमारे पास ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ हमें अगर इनपुट सोर्स करंट और इनपुट और आउटपुट करंट पता है, फ्रॉम दैट वी कैन आल्सो फाइंड द ड्यूटी साइकिल। तो डिपेंड ऑन कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है। अगर हमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन है तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल। और अगर हमें करंट्स पता है, ठीक है, इनपुट सोर्स करंट और आउटपुट करंट, वी विल यूज दिस रिलेशन टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हमारे पास इस रिलेशन से आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें फाइंड हमने करना है कैपेसिटर और इंडक्टर को, ठीक है। तो हम क्रिटिकल कैपेसिटेंस और क्रिटिकल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम जो वैल्यूज यूज़ करेंगे सर्किट में वो हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन दीज क्रिटिकल कैपेसिटेंस एंड क्रिटिकल इंडक्टेंस, ताकि सर्किट जो है वो क्या हो, इट ऑपरेट्स इन CCM मोड। तो CCM मोड को हमने पिछले लैब में डिस्कस किया था। तो इसमें CC क्रिटिकल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, we need the value of switching frequency and also we need the value of the load resistor। तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हमारे पास इस रिलेशन से आ जाएगी और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और लोड की वैल्यू हमें गिवन होगी, तो यहाँ से हम क्रिटिकल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जो कैपेसिटर हम सर्किट में यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर ताकि CCM मोड में हमने अगर डिज़ाइन करना है तो फिर हम वैल्यूज़ रखेंगे ग्रेटर देन द CC, मे बी 2 टाइम्स और 5 टाइम्स ग्रेटर वैल्यू हम रखेंगे कैपेसिटर की। और सिमिलरली हम क्रिटिकल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रिटिकल इंडक्टेंस में के फार्मूला अगर आप देखें तो इसमें हमें वैल्यू चाहिए ड्यूटी साइकिल की, लोड रजिस्टर की और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की। तो सेट कि ये डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और RL, इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, ठीक है। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल इंडक्टेंस। इन शॉर्ट हम इन क्रिटिकल इंडक्टेंस और क्रिटिकल कैपेसिटेंस की वैल्यूज हम निकाल लेंगे, ठीक है।
और फिर हम जो इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ जो सर्किट में हम यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू हम रखेंगे ग्रेटर देन दीज वैल्यूज़, ताकि करंट जो है वो क्या हो, डिसकंटिन्यूस ना हो। सर कौन सी ठीक वैल्यूज है, गिवन होंगी सर? यानी अगर हमारे पास लेट सी क्रिटिकल इंडक्टेंस की वैल्यू आती है ना 1 नो सर माइक्रोफेराड, और ये एल सी की वैल्यू हमारे पास आती है 1 मिली हेनरी। ठीक है, इस इन फार्मूले से अगर हमें रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स पता है, तो पहले हम वोल्टेज से वोल्टेज की वैल्यू से हम ड्यूटी साइकिल निकालेंगे, फिर हमें आर और एल लोड रजिस्टर और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होगी, इससे हम क्रिटिकल इंडक्टेंस और क्रिटिकल कैपेसिटेंस की वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर हम वैल्यूज़ क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन दिस सी सी, यानी अगर सी सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइक्रोफेराड तो वी विल यूज़ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, और अगर एल सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 मिली हेनरी तो वी विल यूज़ इंडक्टर ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिली हेनरी, मीन्स मे बी 2 मिली हेनरी, मे बी 3, मे बी 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिज़ाइन बूस्ट कन्वर्टर। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट वर्किंग एंड डिज़ाइन ऑफ बूस्ट कन्वर्टर? सर ये डिजाइन में दोबारा बता दें कि अगर जोन सी वैल्यू गिवन होंगी तो उसे किस तरह फाइंड करेंगे? देखो बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, मैंने आपको ये कहा कि डिज़ाइन वैल्यूज़ यानी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है ना, उसमें हमें क्या गिवन होगा, वी विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड आल्सो द आउटपुट वोल्टेज, कि ये इनपुट वोल्टेज है, इसको हमने इतना स्टेप अप करना है, यानी लेट्स 5 वोल्ट इज़ द इनपुट वोल्टेज, और जो रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो 12 वोल्ट है। ठीक है, और आल्सो हमें लोड रजिस्टर की वैल्यू गिवन होगी, कि हम अगर इन्हीं को हम ले लेते हैं कि दिस इज लेट्स 100 ओम, कि द लोड वैल्यू ऑफ द लोड रजिस्टर इज 100 ओम, और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमें गिवन होगी, लेट द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोवाट। इस सर्किट की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, we are given the value of load resistor, we are given the value of switching frequency is less 2 kilohertz, and let's the input voltage is 5 volt and the required output voltage is 12 volt। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज हमें गिवन होंगी, दीज आर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, यस या सर। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन इसको कहते हैं। अब हमने क्या फाइंड क्या करना है, वी नो द सर्किट ऑफ ए बूस्ट कन्वर्टर, हमने फाइंड करना है इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर वैल्यूज के लिए पहले हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, और फिर जो वैल्यूज सर्किट में यूज करेंगे वी सेलेक्ट वैल्यूज ग्रेटर देन दीज क्रिटिकल कैपेसिटेंस एंड क्रिटिकल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दीज फार्मूलाज में सिर्फ हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस निकालने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, लोड रजिस्टर एंड स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। यस ठीक है, क्लियर हो गया? यस यस सही। ठीक है, और बाकी वर्किंग तो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, कि काम कैसे करता है, स्विच ओपन होगा तो इंडक्टर जो है वो सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और स्विच क्या होगा, क्लोज होगा तो इंडक्टर जो है वो लोड की तरह एक्ट करेगा, यानी इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। डायोड जो है वो फॉरवर्ड होगा जब स्विच क्या होगा, ओपन होगा, और डायोड रिवर्स होगा जब स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो कि नोड टर्मिनल और ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा तो स्विच विल बी, तो डायोड विल बी रिवर्स वाइज, और अगर क्या होगा, स्विच क्या होगा, ओपन होगा, देन डायोड विल बी फॉरवर्ड वाइज। और तो अगर फॉरवर्ड वाइज होगा तो फिर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सोर्स करंट और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, यानी करंट को ये पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैपेसिटर में, जिसकी वजह से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी और लोड में भी करंट फ्लो करेगा। और जब स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, यानी ऑन स्टेट में होगा, फिर ये क्या होगा, D1 क्या होगा, रिवर्स होगा, तो रिवर्स C1 फिर क्या करेगा, C1 जो है वो प्रोवाइड करेगा करंट टू डिस्चार्ज। लोड। तो इस वजह से हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस मिलेगी। देयर विल बी सम रिपल्स, हमें आउटपुट पे रिपल्स भी मिलेंगे, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल इट विद द वैल्यू ऑफ द C1। C1 C1 को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो हमें जिससे लास्ट टाइम चल गया जी। we can decrease the value of the ripple voltage। जी, जी, एनी क्वेश्चन? नो जहाँ सर। तक पॉइंट समझ में ना आया। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द सिमुलेशन ऑफ बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो you can see the circuit of a boost converter and also the circuit of TL494
जो कि हम यूज़ करेंगे PWM जनरेशन के लिए, ठीक है। यानी हम एक PWM सिग्नल अप्लाई करेंगे स्विच को, ठीक है, और PWM के लिए विल यूजिंग दिस TL494। अब यहाँ पे देखिए जो इनपुट वोल्टेज है, दिस इज इनपुट टू द DC-DC कन्वर्टर इज 5 वोल्ट, ठीक है, और जो इंडक्टर की वैल्यू है वो क्या है, इट इज़ 0.2 मिली हेनरी, ठीक है, और जो डायोड है इट इज़ 1N4001, और जो कैपेसिटर की वैल्यू है इट इज़ 200 माइक्रोफेराड, और जो लोड रजिस्टर की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 100 ओम, ठीक है। और जो स्विच है इट इज़ यानी आई एम यूजिंग दिस MOSFET IRF530 फॉर स्विचिंग। So there is a 100 ohm resistor connected between the PWM signal and the gate of the MOSFET. तो ये सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, we connect some resistor with the gate of the MOSFET. तो बाकी TL494 का तो आप लोगों को पता है, ठीक है, कि how it works, ठीक है, how to set the frequency, ठीक है, and how to set the peak values and how to vary the duty cycle of the PWM signal. You people already know that, ठीक है। तो अगर RT की वैल्यू क्या है 50K है और CT की वैल्यू क्या है 0.01 माइक्रोफेराड है, इट मीन्स दैट और जो मोड है वो कौन सा है, इट इज़ सिंगल एंडेड मोड। तो इट मीन्स दैट जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, इट विल बी 1/RT/CT। तो अगर आप यहाँ से फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज़। तो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, वो 2 किलोहर्ट्ज़ है, और जो पीक वैल्यू है वो क्या है, इट इज़ इक्वल टू 7 वोल्ट, ठीक है। यानी जो पीक में जो PWM सिग्नल मिलेगा उसकी पीक वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 7 वोल्ट बिकॉज VS इज इक्वल टू 7 वोल्ट। तो जो वैल्यू हम VS की रखेंगे दैट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द PWM सिग्नल। और फिर ये जो VR है जिसको हम कनेक्ट करेंगे DTC पैन के साथ, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम वेरी करेंगे तो द ड्यूटी साइकिल ऑफ द PWM सिग्नल विल वेरी। तो कंसिडर करेंगे इसकी वैल्यू क्या, हम स्टार्टिंग की वैल्यू इसको देते हैं 1 वोल्ट, ठीक है, और जो VI की वैल्यू है वो क्या है, वो 5 वोल्ट है। NSC के में क्या आउटपुट की वैल्यू मिलेगी। अब देखेंगे अगर 1 वोल्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, दिस मीन्स दैट द ड्यूटी साइकिल विल बी ग्रेटर देन विल बी क्लोज टू 50%, ठीक है, तकरीबन 30% ड्यूटी साइकिल की वैल्यू होगी। तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज कितनी मिलेगी, तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन, ठीक है, जो कि रिपल की वजह से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है। और इस एवरेज वैल्यू अगर है तो एवरेज को ले लें तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 19.5। इट इज़ अ बूस्ट कन्वर्टर जो कि स्टेप अप करेगा 5 वोल्ट को इनटू टू 20 वोल्ट, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो जो भी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू बनेगी यानी मे बी 30 to 40%। तो अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या होगी 30 to 40% की रेंज में होगी तो वी विल बी गेटिंग 20 वोल्ट अक्रॉस दी आउटपुट। तो ये स्टेप अप कर रहा है इनपुट को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे इस फार्मूले से एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे देखें जो फार्मूला है ना, यानी जो V0 का रिलेशन क्या है विद VS। तो यहाँ पे देखिए V0 जो आउटपुट वोल्टेज इट इज इक्वल टू VS इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 माइनस ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इट कैन बी इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। तो अगर 1 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि V0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी अगर हम क्या कर देंगे स्विच को परमानेंटली क्या कर देंगे ऑन कर देंगे तो हमें वोल्टेज क्या मिलेगी, आइडियली विल बी गेटिंग इन्फिनिटी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। और अगर स्विच को हम क्या अगर डी को 0 कर देंगे यानी परमानेंटली ऑफ कर देंगे देन आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VS। तो इस तरह जैसे मैंने आपको कहा कि अगर स्विच क्या होगा परमानेंटली ऑफ होगा यानी अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो फिर इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, वी नो दैट इंडक्टर एक्ट इज अ शॉर्ट। और डायोड अगर आइडल डायोड है तो देयर विल बी नो ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, इट मींस दैट आउटपुट विल बी इक्वल टू द इनपुट। तो ये फार्मूला में हम क्योंकि हम आइडल कंपोनेंट्स को कंसिडर करके डिराइव करते हैं तो यहाँ से भी ये वेरीफाई होता है, ठीक है।
और अगर डी की वैल्यू क्या होगी, वो इन्फिनिट 1 होगी, तो वी विल बी गेटिंग इन्फिनिटी वोल्टेज। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करेंगे, अगर वी एस यानी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर कांस्टेंट होगी, और अगर हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करेंगे, दी आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज़। तो इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यानी अभी हमें अगर हम 1 वोल्ट रेफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें वोल्टेज मिल रही है 20 वोल्ट। अब ड्यूटी साइकिल को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना होगा, रेफरेंस वोल्टेज को इंक्रीज़ करना होगा। लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट मिलती है लोड के क्रॉस। तो आउटपुट देखें ना, ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करने से नाउ द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 36 वोल्ट, 36.5 वोल्ट। तो although इनपुट जो है वो 5 वोल्ट है, ठीक है, बट वी आर गेटिंग 36 वोल्ट अक्रॉस द लोड। इसका मतलब ये है कि जो अगर इनपुट कांस्टेंट है, तो फिर आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करेंगे, द आउटपुट वोल्टेज विल डिक्रीज, इंक्रीज करेंगे, द आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज। और अगर जीरो कर देंगे, ठीक है, तो वी विल बी गेटिंग ए वेरी आइडियली स्पीकिंग विल बी गेटिंग वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे देखते हैं कि सिमुलेशन में हमारे पास क्या वोल्टेज आती है। तो ज़ीरो कर देंगे तो क्या हमें आउटपुट जो है वो आने में मिलनी चाहिए 5 वोल्ट के करीब। तो यहाँ पे देखें 4.24 वोल्ट के करीब हमें आउटपुट मिल रही है। इस वक्त जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू है वो क्या है, वो ज़ीरो है, लेकिन देयर विल बी सम ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो अगर हम तकरीबन 0.6 का ड्रॉप यहाँ पे ज्यूम कर लें, और देयर विल बी आल्सो सम रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एज वेल, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें वोल्टेज क्या मिल रही है सिमुलेशन में, वी आर गेटिंग 4.24, यानी तकरीबन इनपुट की इक्वल वोल्टेज हमें मिल रही है। सो नाउ लेट मी शो यू द ट्रांजिएंट रिस्पांस के। ये तो स्टडी स्टेट वैल्यू मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट पे मिलेगी इफ ड्यूटी साइकिल इज कांस्टेंट, और जो वोल्टेज की वैल्यू है डिपेंड ऑन द ड्यूटी साइकिल। इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू हमें, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। Now let me show you के अगर हम ट्रांजिएंट बिहेवियर को देखें तो whether it is acceptable to us or not। तो this is the अगर सिमुलेट कर दूँ, यहाँ पे देखें स्टार्ट में क्या है, देयर इज़ अ लार्ज ओवरशूट। वोल्टेज जो है वो पहले राइज कर रहा है, ठीक है, और फिर 18 वोल्ट के बाद इट इज़ डिकेइंग, और 30 मिलीसेकंड के बाद वैल्यू क्या हो रही है, वो कांस्टेंट हो रही है, ठीक है, यानी सिस्टम जो है वो स्टडी स्टेट को पहुंच रहा है, और हमें वैल्यू तकरीबन इक्वल मिल रही है 4.24। और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो जब तक हम ड्यूटी साइकिल को या इनपुट वोल्टेज या लोड को चेंज नहीं करेंगे, ये वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती रहेगी। लेकिन अगर ट्रांजिएंट बिहेवियर को देखें तो 0 से 30 मिलीसेकंड तक देयर इज़ अ लार्ज ओवरशूट। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है, यानी कंसिडर करें कि हमें लोड के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तकरीबन 4.54। तो स्टडी स्टेट वैल्यू तो ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल जो हमें लोड के क्रॉस चाहिए, लेकिन जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है ना सिस्टम का, वो हमें जो है वो इट कैन डैमेज अवर लोड, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वोल्टेज जो है वो लोड के क्रॉस 18 वोल्ट भी अपीयर हो सकती है। अब इसको हमने कैसे हैंडल करना है, ठीक है, फॉर दैट आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल बी यूजिंग कंट्रोलर। तो कंट्रोलर पार्ट में विल ट्राई टू कि जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओपन लूप में अगर हम दिस सिस्टम इज़ नाउ इन ओपन लूप, ठीक है, देयर इज़ नो फीडबैक, ठीक है, सो इट इज़ एन ओपन लूप। और ओपन लूप में प्रॉब्लम्स क्या है कि देयर विल बी अ लार्ज ओवरशूट। बाकी स्टडी स्टेट वैल्यू तो हमें मिल रही है, ठीक है, इट्स फाइन, ऑल्दो हम इसको भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, देयर इज़ एन ओवरशूट। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इफ देयर इज़ सम वेरिएशन इन द इनपुट वोल्टेज, then the output voltage will also change, ठीक है, और यानी लाइन रेगुलेशन चेंज इन इनपुट आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, तो उसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है, ओपन लूप में। सेकंड ये है कि अगर हम लोड रेगुलेशन, यानी लोड रेगुलेशन इज द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद द चेंज इन द लोड करंट, लोड को अगर वेरी करेंगे स्टिल द आउटपुट वोल्टेज विल चेंज। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर इज़ वन प्रॉब्लम, ठीक है, कि वो हमें जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा।
सेकंड ये है कि दिस सर्किट डिपेंड्स द आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन द लोड रजिस्टर एंड आल्सो ऑन द इनपुट वोल्टेज। तो इसको हमने कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि लोड से आउटपुट वोल्टेज चेंज ना हो और इनपुट वेरिएशन से भी आउटपुट चेंज ना हो और ट्रांजिएंट रिस्पांस भी हमें अच्छा मिल जाए, वो फिर हम आगे जो कंट्रोलर डिस्कस करेंगे उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हमने बेहतर बनाना है ट्रांजिएंट बिहेवियर को और कैसे हमने इनपुट वेरिएशन के इफेक्ट को हमने कैसे रिमूव करना है और लोड वेरिएशन की इफेक्ट को हमने कैसे रिमूव करना है ताकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड वेरिएशन या इनपुट वेरिएशन से चेंज ना हो। जी गाइस, एनी क्वेश्चन अबाउट टुडे लैब, हाउ टू डिज़ाइन बूस्ट कन्वर्टर, what is boost converter, how to design it and how to implement it? जी अगर कोई क्वेश्चन है तो we can discuss. क्लियर सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यूर टास्क, आपका टास्क क्या है? सिंपल, वेरी सिंपल, टेबल इज गिवन टू यू, ठीक है। आपने करना ये है कि इनपुट वोल्टेज को आपने सेट करना है 5 वोल्ट पे। इनपुट वोल्टेज से मुराद यहाँ पे ये जो कन्वर्टर को जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट टू द डीसी कन्वर्टर, ठीक है। although we will be applying some voltage to the TL494 and also we will be applying some voltage at pin number 4 to vary the duty cycle, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे जो VS से मुराद है, ये जो दिस इज द इनपुट टू द बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, DC वोल्टेज दैट वी विल अप्लाई टू द बूस्ट कन्वर्टर। तो वोल्टेज जब अप्लाई करोगे 5 वोल्ट, ठीक है, यू विल सेट द ड्यूटी साइकिल एट 35%, ठीक है। तो 35%, यू पीपल नो हाउ टू सेट ड्यूटी साइकिल एट 35%। लेट मी शो यू द वेव फॉर्म, ठीक है, और फिर आप कर सकते हो इसको। दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ, नाउ लेट मी शो यू द PWM सिग्नल। इस वक्त तो तकरीबन 0 है ना, let's set it to 1। ठीक है, तो PWM सिग्नल। अब इसमें आपने क्या करना है, नोट करना है ऑन टाइम को, और टोटल टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज़, इट्स मीन दैट टोटल टाइम पीरियड इज 1/2K। और ऑन टाइम की वैल्यू आप क्या करोगे, यू विल नोट इट फ्रॉम द PWM सिग्नल। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आप फाइंड करोगे ऑन टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। तो यू कैन इजीली के ऑन टाइम की वैल्यू क्या है वो आप इस वेव फॉर्म से इजीली डिटरमिन कर सकते हो। तो अगर इसको 1 वोल्ट पे देखें, अगर 2 वोल्ट करेंगे तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू जो है वो इट विल, यहाँ पे देखें ऑन टाइम की वैल्यू अब क्या है, वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इट इज़ नाउ ग्रेटर देन, ड्यूटी साइकिल इज़ नाउ ग्रेटर देन 50%, तकरीबन वैल्यू होगी 60-65 के करीब। तो एग्जैक्ट आप ऑन टाइम इंटरवल को नोट करोगे, ठीक है, यू विल डिवाइड इट विद द टोटल टाइम पीरियड। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, और वेरी आपने किस चीज़ को करना है, आपने रेफरेंस वोल्टेज को वेरी करना है। You will vary the reference voltage and you will set the duty cycle at 35%, and you will note the value of the switching frequency, that will be almost 2 kilohertz, and also you will note the output voltage, ठीक है। इस तरह फिर आपने 50% ड्यूटी साइकिल के लिए फाइंड करना है आउटपुट वोल्टेज और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पर 70% ड्यूटी साइकिल इज वेल, ठीक है। और आल्सो यू विल ड्रा दी वेव फॉर्म। वेव फॉर्म आप कौन सी ड्रा करोगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज यानी PWM सिग्नल, ठीक है,
एंड आल्सो द आउटपुट वोल्टेज, जिसमें ट्रांजिएंट पार्ट भी आएगा और स्टेडी स्टेट पार्ट भी आएगा, ठीक है। फॉर ड्यूटी साइकिल 35%, फॉर ड्यूटी साइकिल 50% और फॉर ड्यूटी साइकिल 70%। इसमें आपने ऑब्जर्व ये करना है कि रिपल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है स्टेडी स्टेट में, वेदर देयर इज सम द रिपल वोल्टेज इज इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द ड्यूटी साइकिल और नॉट, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट कर लें। और ट्रांजिएंट बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करने से, स्टेडी स्टेट वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एंड आल्सो रिपल वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो you will observe the PWM signal, you will observe the output voltage for different duty cycle of the PWM signal, ठीक है। जी कर लेंगे। यस